Question number 76, Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. Question number. आदरणीय Just read the question number, numerical number. क्वेश्चन नंबर 76 Honorable Minister. Sir, statement is laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आपके नेतृत्व में पशुधन का आरोग्य सुखकारी होने के लिए वेटरनरी मेडिसिन के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो सराहनीय है। मैं केंद्र सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि वेटरनरी मेडिसिन में रिसर्च एवं क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए क्या केंद्र सरकार आगे कदम उठा रही है क्या? Honorable Minister. Sir, insofar as the research in veterinary medicines and drugs and vaccines is concerned, we have many scientific bodies and research institutes under the other ministries of the central government. I would like to name a few bodies. The Indian Council of Agriculture Research has IVRI. There's also National Institute of High Security Animal Diseases under ICAR, the National Research Center on Equines under ICAR, National Institute of Foot and Mouth Disease under ICAR, and various other research institutes. These scientific bodies and institutes are functional under the other ministries, and they work towards the necessary research which is needed in the field of veterinary drugs and vaccines. Insofar as clinical trials are concerned, sir, that is being looked after by the Central Drugs Standards Control Organization, which falls under the Ministry of Health and Family Welfare. Second supplementary, Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या CDSO पशु आहार में अडल्ट्रेशन को सख्ती से पेश आने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देने पर आगे विचार कर रही है क्या? माननीय मंत्री जी. Sir, as and when required, we pass on the necessary instructions to the state government bodies. Third supplementary, Susri Swati Maliwal. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this very important issue. Sir, हम आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से कहीं पे भी कोई जानवर, कोई पक्षी घायल हालत में पड़ा हुआ होता है। कभी कोई गाय पड़ी हुई होती है, कभी कोई कुत्ता पड़ा हुआ होता है, कभी कोई बिल्ली पड़ी हुई होती है, कभी कभी तो सर उनमें कीड़े भी लगे हुए होते हैं। और आम लोग, काफ़ी लोगों को दया आती है, वो मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे मदद करें, क्योंकि जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं सर, वो काफ़ी बार देखा जाता है कि काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई किसी प्रपोजल पे, किसी गाइडलाइन पे, किसी वेलफेयर स्कीम पे कोई काम चल रहा है कि सारी फार्मेसीज़ में ओवर द काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ जैसे कि फर्स्ट एड किट्स हों, रेस्क्यू किट्स हों एनिमल्स एंड बर्ड्स की, क्या ये अवेलेबल करवाई जा सकती हैं? क्या ऐसा कोई काम चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस इशू पे वो काम करें। उन्हें लाखों करोड़ों बेजुबानों की बहुत बहुत दुआ लगे। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। Sir, the question today is on the subject of a separate regulatory body for veterinary medicine. The issue that the honourable member has raised pertains to the state governments and the municipal corporations. Insofar as her query regarding a proposal under discussion at the level of the central government is concerned, there is no such proposal under discussion. She also wants whether you will consider one. Now, the answer will get a little longer, sir. Our role here of the CDSCO is to basically regulate the new permissions for the new drugs and vaccines for both import and manufacture. Good. This is not something that CDSCO looks into. Supplementary number 4, Shri ब्रजलाल। धन्यवाद चेयरमैन सर। पशुओं में कभी कभी बहुत महामारी आती है, बर्ड फ्लू
और अभी काउज में आया था, उनके स्किन जो है फफोले पड़ते थे और उससे वो मर जाते थे। मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि इस टाइप की जो महामारी पशुओं आए उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। सर, जहाँ तक पशुओं के बीमारियों या महामारियों का सवाल है, इसके लिए जिस भी किस्म के ड्रग्स या वैक्सीन्स की अनुमति का विषय होता है तो CDSCO उसको देखता है। जहाँ तक इन ड्रग्स या वैक्सीन्स के सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी या सेल डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी का सवाल है, वो हमारे स्टेट के बॉडीज़ होते हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं, उसको देखते हैं। अगर कोई नए प्रकार की बीमारी आती है जिसमें किसी नए प्रकार के ड्रग या वैक्सीन की आवश्यकता है तो उसमें जो CDSCO का एक ड्यू प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं उसके परमिशन के लिए, लेकिन उसकी सेल, उसका मैन्युफैक्चर या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ इंश्योर करना हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स का जिम्मेदारी होती है। श्रीमती मौसम नूर, 5th सप्लीमेंट्री। Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister whether the government has planned to set up a scheme on the lines of PM Jan Aushadhi Kendras for increasing the access and availability of veterinary medicines. If yes, the details thereof, and if no, the reasons thereof. Thank you. Honorable Minister. So this does not pertain to us, my department. Question number 77, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. Honorable Minister. The table of the House. Supplementary number 1, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. Thank you, sir. Sir, the government in its reply states that the first round of counselling will be commenced in 14th of August, when it will conclude the process. Honorable Minister. Sir, the question pertains to the commencement of the NEET UG 24 counselling, for which we have already announced that the first round of counselling will begin on the 14th of August, and as per the Supreme Court's order, we will be holding the counselling in 4 rounds. So, the registrations are already starting in the first week, and then 4 rounds we will carry it on. Second supplementary. 1 second. You are replying? Yes, sir. I would like to apprise the House of the dates also. First round will be from 14th August till 23rd of August. You said so. Second round would be 15th September till 13th September. Third round would be 26th September to 5th October. And fourth round would be 16th October till 24th October. Second supplementary, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. How will the government ensure that such recurrence do not happen, and whether it plans to bring change in NTA? Honorable Minister. Sir, NTA, as you know, falls under the Ministry of Education. Insofar as the allegations of paper leaks are concerned, sir, the Supreme Court judgment has already come to us, and the House, every member is well aware of the Supreme Court judgment. And I would only like to assure through you, the honourable member, that this government is committed to the best interests of the students, and whatever needed will be done by the government. Third supplementary, Shri Satnam Singh Sandhu. सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में 15 नए एम्स बनाए गए। इसके अलावा एनडीए शासन के दौरान 10 वर्षों दौरान 263 नए मेडिकल कॉलेज खुले। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद 2014 तक भारत में केवल 380 मेडिकल कॉलेज का निर्माण ही किया गया था। मेडिकल एजुकेशन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI देश का मुख्य मेडिकल एजुकेशन का प्राधिकरण जो 1934 से काम कर रहा था, सितंबर 2020 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन ने ले ली। इस संबंध में क्या मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन के लिए सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए? माननीय मंत्री जी। सर, नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 में बना और हमने नीट
इसको एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह इंट्रोड्यूस किया फॉर एडमिशन्स टू ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फॉर द यूजी, पीजी एंड द एसएस कोर्सेज। और फिलहाल जो सुधार के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसको हम अलग से चर्चा कर लेंगे। Supplementary 4, Sri A. Rahim. Thank you for this opportunity. Sir, the number of NEET UG applicants in the country is increasing every year, with applications rising from approximately 11.5 lakhs in 2017 to cover 24 lakhs this year. However, the number of availability of seats has not increased proportionately. Sir, in this context, I would like to ask through you, the Honorable Minister, sir, particularly my question regarding the set up the new aims in Kerala. Sir, we are eagerly waiting for the announcement from the government side. We are eagerly waiting for that. My question that I would like to know from you what is the government stand in this regard? Honorable Minister. So the establishment of AIIMS in Kerala does not pertain to the subject of the question today, but insofar as the increase in the number of the UG and PG seats is concerned, I don't have the exact figures with me right now, but the House is much aware that in the 10 years, we have taken every step to increase the number of both UG and PG seats in medical education. Srimati Sagarika Ghosh, 5th supplementary. Sir, can the Honourable Minister please tell us that the NEET examination, being India's biggest competitive examination with 25 lakh candidates, 2 lakh invigilators, 4,500 examination centres, is the government considering for the next year decentralizing the NEET examination, which will make examining authorities more accountable because the responsibility to conduct the examination can be distributed among regional and state entities. A local examination board is in a better position to understand and tackle the problems faced by students in particular regions. Has the government put in place any plans to decentralize the NEET examination for the next year? Sir, going into the background of the introduction of the NEET examination, prior to this common entrance examination, students had to appear for multiple exams which had a different syllabus, which had a different paper format. So to overcome the hardships of the students, this uniform entrance exam was introduced. Insofar as the decentralization of the examination, once again going back to the earlier system is concerned, I would pass on the suggestions of the Honourable Member to the Honourable Minister of Education. First supplementary, Srimati Mahua Maji. Honourable Chairman Sir, कई समाजों में आज भी HIV संक्रमण से पीड़ित मां को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है। उनके साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है, चाहे वह हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्रों की गलती से इन्फेक्टेड इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से ही अनजाने में संक्रमित क्यों ना हो जाए। इस गलत धारणा को लोगों के मन से दूर करके पीड़ित महिला के साथ सम्मानजनक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए और वह सामान्य जीवन जी सके, इसके लिए क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, हमारी सरकार नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम के फेज़ 5 को इस समय इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसमें खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए डुअल एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिविलिस, इस पर हम काम कर रहे हैं। वी हैव इंटीग्रेटेड दिस विद NHM। तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट विमेन ANC चेकअप के लिए आती हैं, उनका हम कंपलसरी टेस्टिंग फॉर HIV एंड सिफिलिस भी करते हैं। हमारे फेज़ 5 के अंतर्गत तमाम सारे जो गोल्स हैं, उसमें एक यह भी है कि स्टिग्मा इससे जुड़ा हुआ जो है उसको हमें कम करना है, और इसके लिए निरंतर जो हमारे ग्रास रूट लेवल और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी हम ट्रेनिंग करके हैं और साथ ही साथ समाज में भी जागरूकता लाते हैं। और जो हमारी महिलाएं स्वयं आती भी हैं टेस्टिंग के लिए, अगर वो HIV पॉजिटिव पाई जाती हैं तो उनकी भी काउंसलिंग के प्रबंध रहते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको हम ANC चेकअप के दौरान ही उनकी टेस्टिंग भी कर सकें और उनको ART ट्रीटमेंट पे भी डाल सकें, और स्टिग्मा को जितना भी हम कम कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर वर्कर्स में भी, और जो हमारी महिलाएं हैं उसमें भी हमारी कोशिश लगातार जारी है।
सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती महुआ माझी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जागरूकता के अभाव में बिना ट्रीटमेंट के HIV संक्रमित माताओं के लगभग 25 to 30% नवजात बच्चे HIV से संक्रमित पाए जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि HIV संक्रमित सिंगल मदर जिसे घर से, परिवार से या समाज से अलग थलग कर दिया जाता है कि बच्चों को, चाहे वे संक्रमित हों या ना हों, समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर स्वाभाविक जीवन जीने के लिए क्या सरकार अपनी तरफ से कोई व्यवस्था करती है? माननीय मंत्री जी। पहली बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक HIV का सवाल है, एक तो जो स्टिग्मा की बात की गई, इसमें हेल्थ वर्कर से लेकर के डॉक्टर से लेकर के हेल्थ की सारी फ्रेटर्निटी को ये ध्यान में रखना है कि द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, इट कैनॉट बी डाइवर्ज्ड टू एनीबडी। इसलिए हम लोगों ने इस बात को प्रयास किया है और कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के कारण यह इस तरह की समस्या से हमने इसको रोकने का प्रयास किया है। दूसरी बात कि कोई भी माता फर्स्ट 3 मंथ्स के कंसेप्शन के बाद जब वो किसी भी सेंटर पर जाती है, और जो जाना आवश्यक ही है क्योंकि हमारे आरोग्य मंदिर जो 1,73,000 हैं वो सभी माताओं को ट्रैकिंग करती है जो कंसीव करती हैं। फर्स्ट 3 महीने में उनका HIV का टेस्ट होता है, इट्स कंपल्सरी, और इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी रिएक्टिव यानी HIV पॉजिटिव के सिग्नल्स मिलते हैं तो उसको हम ICTC सेंटर को भेजते हैं, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स को, और काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर से वो उसकी क्लैरिटी होती है, वो उसमें उसकी कंफर्मेशन होती है। वंस द कंफर्मेशन इज डन, कोई भी भारत का के पेशेंट उसको हम टेस्ट एंड ट्रीट पर डालते हैं। द मोमेंट इट इज टेस्टेड पॉजिटिव, ट्रीटमेंट स्टार्ट्स देयर आफ्टर, और वो फ्री ट्रीटमेंट है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, सारी जिंदगी उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है। उस व्यक्ति, उस माता को किसी एक हेल्थ सेंटर से जोड़ा जाता है जहां हम उसकी ट्रैकिंग करते हैं कि वो कंपल्सरी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रहे हैं कि नहीं ले रही है। जब प्रेगनेंसी की डिलीवरी का समय आता है तो उस समय उसके जो लोड है वायरस का उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है, और मिनिमाइज करने के साथ साथ डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद माता को भी और बच्चे को भी 72 घंटे के बाद से, और डिपेंडिंग अपॉन द उसमें हम प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं, यानी इन एंटिसिपेशन देते हैं, और बच्चे को भी हम सिर्फ के द्वारा एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, और वो ट्रीटमेंट 72 घंटे के बाद से लेकर के कभी 12 वीक्स कभी 16 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, और हम रेगुलर चेकअप करते हैं कि वो नहीं हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पॉजिटिविटी डिलीवर्ड बच्चों में आया है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% टू 3 to 4%, इतना नीचे उसको हम लेकर के आए हैं। इसलिए इसकी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, और एक ज़माने में हम सब लोग ये 80 के दशक में और 90 के दशक में हम लोगों ने देखा एड्स मतलब डेथ वारंट, एड वॉज लाइक ए डेथ वारंट। आज यह जीवन में इसके साथ जी करके लाखों लोग हैं जिन्होंने जीवन जिया है, और इसलिए इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हुई है। और मैं यहाँ जस्ट माननीय सभापति जी आपके परमिशन से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया है इस मानवता, अपनी मानवता के लिए। ये ड्रग बहुत कॉस्टली ड्रग थी और इसको कोई कॉमन मैन इसको ले नहीं सकता था, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इसका जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाया और जो इसको आगे प्रमोट किया वो बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत चीप बनाया, जो सारी दुनिया के लिए और मानवता के लिए, सारे देशों के लिए, विशेष करके उन देशों में जहाँ पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी उसको भी कंट्रोल करने में बहुत कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक एड्स का सवाल है, ये प्रोसेस के माध्यम से आज एक HIV माता भी एक सेफ डिलीवरी में एक सेफ बच्चा विदाउट HIV डिलीवर करती है, ये स्थिति है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर भगवत कराड। माननीय सभापति महोदय,
आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं और मंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के बारे में बताया। इज देयर एनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द HIV वुमन एंड HIV पर्सन आफ्टर दे आर डायग्नोज एज HIV पॉजिटिव? तो उनका आइसोलेशन करने के बाद रिहेबिलिटेशन करके क्या क्या सेंटर्स है, कितने सेंटर्स है, गवर्नमेंट क्या मदद करती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है इसको समझा दिया है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी हाउस को बताया कि जो भी हमारे HIV पेशेंट्स होते हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनका पूरा बताया कि हम उनको पहले तो डुअल टेस्ट किट्स में उनको देखते हैं कि अगर वो रिएक्टिव हैं तो ICTC सेंटर से उनको लिंकअप करते हैं। अगर वो कंफर्म डायग्नोसिस उनकी आती है तो हम उसे जो नियरेस्ट एंटी रेट्रोवायरल सेंटर होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उस सेंटर के साथ कनेक्ट होने के बाद उनकी काउंसलिंग भी चलती है, उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है, उसकी कंप्लायंस को भी मॉनिटर किया जाता है और साथ ही उनके जो वायरल लोड असेसमेंट है वो भी हम रेगुलरली करते हैं। लेकिन रिहैब में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य जीवन जी सकते हैं, अपने घर परिवार के बीच में रह सकते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो रेगुलरली फॉलो किया जाता है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री रजनी अशोक राव पाटिल। Sir, through you, I would like to state that how will the government achieve the revised target of eliminating vertical transmission mother to child of HIV in India by 2025, when the original goal was set at 2020. Honorable Minister. Fast on it, और ये जो बता रहे हैं, I will look into it, what is the situation, लेकिन HIV is under control, जैसा मैंने कहा 30%। मैं फिर कह रहा हूँ, रेणुका जी, no, you are right, Renuka ji, but you have to get permission for it, please. You are a very senior member. No, permission from the chair. Permission from the chair. Permission from the chair. नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रश्न जो है वो रिलेटेड है प्रेग्नेंट मदर का, और उसके दृष्टि से मैंने उत्तर दिया है। जहां तक आपने प्रेवलेंस की बात कही है, मैंने पहले कहा कि HIV इज़ नाउ अंडर कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2, फ्री ट्रीटमेंट इज़ देयर, और फ्री ट्रीटमेंट के साथ साथ हम फ्री ट्रीटमेंट इज़ देयर, टेस्ट एंड ट्रीट। इसलिए कोई भी पेशेंट जिसको भी हम HIV डिटेक्ट करते हैं उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन देने की व्यवस्था भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है। और इसीलिए इसके प्रेवलेंस, देखिए इन्फेक्शन के कई सोर्सेज हो सकते हैं, तो अब वो इन्फेक्शन चलता रहता है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट है और वो अंडर कंट्रोल है। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्री संजीव अरोड़ा। Sir, Mike. Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask a question to Honorable Minister. Recently in Germany, a HIV-infected patient was reportedly cured of it by means of stem cell transplant. Has any research in the same direction been conducted in India, or do we plan to conduct the same in near future? Honorable Minister. The scientific innovations and research is a continuous process. And I don't have any information that whether HIV के लिए stem cell के माध्यम से कुछ किया जा रहा है, but it is a continuous process. हमारे यहाँ scientists keep on deliberating on it. जैसे जैसे दवाई मार्केट में आती है वो उसको लोगों के उपयोग के लिए हमारे जो कंट्रोल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेगुलेटरी सिस्टम्स को पूरा करके उसको हम क्वेश्चन नंबर